all my friends from press and electronic media. At the outset, sir, I'm thankful to our Honorable MR, under whose visionary leadership, motivation and guidance, the railway has been transformed. We are also grateful to our 12 lakh employees, supervisors and officers who have given our unstinted support during difficult times, which has helped us transport both our passengers and goods in a very efficient manner. This is a budget which is a transformational budget. This is a path-breaking budget. Budget is based on the deliverance on the part of the railway. This budget addresses the concerns of expanding the railways, expanding the capacity. It is a future-ready budget for Indian Railways. The focus is on time-bound execution, deliverance, better facilities for our passengers, for our freight customers, coupled with safety, and a paradigm shift in the way we work. So I would now take up the basic achievement that we have had during the course of the current year. The freight loading has crossed 1 billion ton as on the 3rd of February. In the last 5 months, we have turned around. We have basically been loading more than what we were loading in the same period of last year. And we have crossed 1 billion ton already, and we expect to cross our loading target this year. Our freight train speeds have doubled. We have already achieved a speed of about 46 kmph per hour. We transported 157 Kisan rails. We moved carrying more than 50,000 tons, and 4,621 Shramik Special during difficult times, carrying more than 6 million passengers. The DFCIL, we commissioned 657 kilometers both on the eastern and western sector. An additional 435 kilometers we expect to achieve by March. And rail connectivity to our national monument at Kevadia has been provided. We have connected that with our cities like Banaras, Delhi, Chennai, Ahmedabad, Baroda, so that we can move our people to this, to have a look at this national monument and develop the area also. We have done multi-tracking gauge conversion, 1491 kilometers and 400 by March. Some of the major projects that we have completed are mentioned here. On electrification, we have done 2,488 kilometers, and we expect to do an additional 3,500 by March, and we expect to complete 6,000 kilometers this year. Major electrification projects are from New Delhi to New Coach Bihar via Patna Katiyar, which has helped us in avoiding traction change at Patna as well as in the intermediate stations. The Howrah-Mumbai route via Prayagraj also has been electrified. Delhi-Jaipur, Udaipur and Delhi-Jayanagar. Gentlemen, during this COVID period, we took it as an opportunity for us to improve our infrastructure, to complete those works where we had problems regarding our blocks. So we completed 350 major infrastructure works to improve safety and speed. We were also successful in ramping our production. The electric loco production so far has been 569, and next year we plan to do more than 900 locomotives. And the LHB coach production was 3,500 coaches so far till January, and we expect to do more than 6,500 coaches next year. We have also launched a freight business developmental portal, upgraded the e-ticketing website of IRCTC. We are doing 100% procurement on digital platforms, redevelopment of Gandhinagar and Habibganj stations. On Atmanirbhar Bharat front and promoting indigenization, we have reduced the import procurement from 5.6% to only 1.5%. And the Vande Bharat train sets, now we have ordered for 44 more train sets which are having 75% indigenous content. Our 151 modern train sets through PPP are also under a bidding stage. And on the safety front, we had no passenger fatality since April 19. Some of the key budget announcements.
We have already made a national rail plan 2030 to create a future ready railways which will be able to cater to the requirements of the railways till 2050 and to achieve a modal share of 45% in freight traffic. The dedicated freight corridors are expected to be commissioned by June 22. The Somnagar-Gomo section is to be bid out in PPP mode in 21-22 and the Gomo-Dankuni section thereafter. The three other DFC projects, the DPRs are under preparation. They will be a game changer for the logistics. They will fast track and economize the transportation of goods along the way and provide an alternate path for us to carry our essential commodities like steel, cement, coal, container traffic along those routes. Electrification, gentlemen, we have done much better. We are now almost 46,000 route kilometers we'll achieve by December. All the routes are expected to be completed by December 23. Our import fuel bill by completion of this would save 14,500 crores and will generate additional line capacity due to higher speeds, higher haulage capacity and reduction in operational bottlenecks and traction change. The transit time for the passengers will also reduce and will lead to a cleaner transport which is eco-friendly. We have also aesthetically designed Vista Dome coaches are now available and we expect to make another 50 coaches this year. They are running on the hill sections and we expect to multiply these coaches so as to boost ecotourism. The railway also plans to monetize the DFC post-commissioning and other railway infrastructural assets to generate revenues for our other works. Our high-density network and high-utilized network will also be provided with a TCAS system, which is an indigenously developed automatic train protection system. It is a world-class technology which will aid the locomotive pilots in foggy weather to maintain maximum permissible speed also and will also enable centralized monitoring of real-time train movement. Gentlemen, the biggest point in this budget is on deliverance, on time-bound execution of projects. And therefore, the capex for this year is more than 2,15,000 crores, out of which 1 crore 7 lakhs is the GBS allocation. This is almost 53,000 crores more than the total capex for last year. And if you look at the years earlier, from 9 to 14, we had a capex of only 46,000 crores, which has been ramped up to almost 1 lakh crore in 2014-19 and now ramped up to 2,15,000. So the thrust is on creation of capacity, creation on development, on reaching out to all sectors of the society, improving our freight movement. It will give a tremendous boost to our economy and creation of infrastructure, especially in Northeast region also. As you can see, the allocations for all the fronts has been increased. Dedicated freight corridor by 114%, high-speed rail by 150%, new lines by 53%, and national projects by 72%. Thank you, gentlemen. Thank you, Chairman, sir. Now, before I invite our Honorable Minister, sir, to address and take the questions, I would just lay certain rules of this media interaction today for our dear media friends. Questions have been taken. We had asked, कल से आपसे हमने मंगवा लिए थे. उसी सीक्वेंस में हम लेंगे जिस सीक्वेंस में हमारे पास क्वेश्चन आए हैं. कोई अपनी तरफ से सो मोटो प्रश्न नहीं करेगा, अदरवाइज देयर विल बी बिट ऑफ कंफ्यूजन. आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू काइंडली फॉलो द रूल. एंड ऑल्सो एमआर सर के पास समय थोड़ा कम है, आप जानते हैं, तो समय अनुभव का कारण हम जितने प्रश्न ले सकते हैं उसी सीक्वेंस में हम लेंगे. सो सर, may invite Chairman, Honorable Minister, sir, to kindly brief the media persons before taking the question, sir. Thank you very much. A warm welcome to all our friends from the media. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. मैं समझता हूँ जब से भारतीय रेलवे का बजट केंद्रीय बजट के साथ मर्ज हुआ है, ये इस सरकार की नई सोच को दर्शाते हुए बहुत सारे पहलुओं पे बजट में परिवर्तन करने का काम शुरू हुआ. और इस बजट को अगर देखें तो शायद ये सबसे बड़ा बजट भारतीय रेलवे को मिला है, सबसे बेहतरीन बजट भारतीय रेलवे को मिला है.
और रेलवे की अलग अलग पहलुओं के ऊपर चिंता करते हुए उसके लिए पर्याप्त मात्रा में आवंटन करते हुए इस बजट ने भारतीय रेल को सही माने में कैटलिस्ट फॉर चेंज बनाने का काम किया है। और ऐसे ही कैटलिस्ट फॉर चेंज के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था को और गति देना, गिव विंग्स टू द व्हील्स ऑफ द इकोनॉमी is evident from the intention and the allocation that this budget has provided the Indian Railways. एक माने में भारतीय रेल को फ्यूचर रेडी बनाने का जो काम इस बजट ने किया है और जो नेशनल रेल प्लान का जिक्र माननीय वित्त मंत्री ने किया, जिसके तहत अब हर पहलू पे भारतीय रेल को हमारे उपभोक्ताओं की सेवा में, चाहे वो पैसेंजर्स हो, यात्री हो, चाहे वो मालगाड़ी के माध्यम से अपना सामान भेजने की इंडस्ट्री या पार्सल्स को इस्तेमाल करने का छोटे व्यापारी, छोटे एमएसएमई सेक्टर की जरूरतें हो, उन सब के लिए इस बजट के माध्यम से मेरा विश्वास है भारतीय रेल और अच्छी तरीके से देश की सेवा कर पाएगा, देश के काम आ पाएगा। वैसे तो हम सब ने देखा कि बजट ने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर विशेष फोकस दिया है, लेकिन रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा बने उसके लिए जिस प्रकार का फोकस इस बजट में देखने को मिलता है, चाहे वो हमारी फ्रेट की कैपेसिटी बढ़ाने का काम हो, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स को तेज गति देने का काम हो, नए कॉरिडोर्स आगे चल के भारतीय रेल बना सके उस दिशा में कदम हो, हाई स्पीड रेलवे भारत में आए और हमारे यात्रियों को, पैसेंजर्स को अच्छी तेज सुविधाएं मिले, चाहे टर्मिनल फैसिलिटीज और रेलवे स्टेशन सुधार का काम हो या सिग्नलिंग को सुधार के भारतीय रेल को और सुरक्षित बनाना और साथ ही साथ उसकी कैपेसिटी बढ़ाने का काम हो, हर प्रकार से सुरक्षा और एक सुगम सफर भारतीय रेल अपने पैसेंजर्स को, अपने यात्रियों को दे, इस दिशा में इस बजट के माध्यम से कई सारे करने के लिए और प्रोत्साहित किया गया है। शायद भारतीय रेल के इतिहास में ये सबसे बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर का एलोकेशन किया गया है। 2,15,000 करोड़ अपने आप में हम सबकी कल्पना से बाहर जाके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस बजट में एलोकेशन किया गया है। अधिकांश उसमें से बजट के माध्यम से प्रोविजन किया गया, लगभग 1 लाख करोड़ का। और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए रेलवे अपने आप में आत्मनिर्भर तो बने ही, लेकिन जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है, जो माल ढोने का जो खर्चा भारतीय उद्योग के ऊपर, एमएसएमई के ऊपर पड़ता है, खासतौर पे जो निर्यात के ऊपर भी जो पड़ता है, वो कैसे कम हो, कैसे जो एक बड़ी समस्या देश के सामने है कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ आवर फिनिश्ड प्रोडक्ट बढ़ के 13-14% हो गया है, उसको इंटरनेशनल बेंचमार्क पे 8-9% पे कैसे लाया जाए, उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है जो मैं समझता हूं आगे चल के भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने में भी अहम भूमिका निभाएगा। हम सब ये भी जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पैसा निवेश होता है उसका बड़ा मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। हर रुपया जो इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा जाता है और उसमें रोडवेज है, रेलवेज है, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट, इनलैंड वाटरवेज, पावर सेक्टर, इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों में जितना निवेश होता है उसकी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी मल्टीप्लायर इफेक्ट देखने को मिलती है। साथ ही साथ
लोगों को काम करने का अवसर, चाहे वो जॉब्स हो, इनडायरेक्ट काम करने का मौका मिले, एंटरप्रेन्योर्स को अपना बिजनेस और बढ़ाने का मौका मिले, भारतीय उद्योग को बड़ा बाजार मिले, इन सब के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा योगदान होता है। और इस बजट ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस देके पूरे देश की अर्थव्यवस्था को और तेज गति देने का जो एक अपना इंटेंशन और उस दिशा में जो कदम उठाए हैं, उसकी सराहना सभी चारों तरफ से आज देखने को मिल रही है। मैं समझता हूं गत 2 वर्षों में जिस प्रकार से पैसेंजर सेफ्टी के ऊपर, पैसेंजर कंफर्ट और एमेनिटीज के ऊपर बल दिया गया, उसका परिणाम आप सबके समक्ष है। लगभग 2 वर्षों में भारतीय रेल के एक्सीडेंट के कारण कोई पैसेंजर की मृत्यु नहीं हुई है। हर एक रेलवे स्टेशन साफ सुथरा सुंदर बनाने की दिशा में बहुत बड़े कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली और छत्रपति शिवाजी महाराज CSMT टर्मिनल पे भी बड़ी योजना तैयार हो गई है, जिसके तहत उनका रीडेवलपमेंट करके एक मॉडल इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाने का प्रोसेस शुरू हुआ है। साथ ही साथ देश भर में प्रमुख जो रेलवे स्टेशन हैं, उनका सुंदरीकरण तेज गति से चल रहा है। पूरी रेलवे को इलेक्ट्रीफाई करना, और जिस दिशा में अगले कुछ महीनों में हम लगभग 72% इलेक्ट्रिफिकेशन तक पहुंच जाएंगे, और मेन लाइंस पे हम पहले शुरू में फोकस कर रहे हैं, उसका बहुत बड़ा लाभ पर्यावरण पे भी होगा। पोल्यूशन फ्री रेलवे बनाने की दिशा में हम जा रहे हैं। आगे चल के हमारी सोच है कि इसको नेट जीरो रेलवे बनाया जाए, जिसमें पूरी जो बिजली भी लगती है वो भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से पैदा हो, सोलर हो, विंड हो। हम पूरी जो बिजली इस्तेमाल करते हैं वो क्लीन एनर्जी इस्तेमाल करके भारतीय रेल विश्व का पहला इतना बड़ा रेलवे होगा जो 2023 दिसंबर तक 100% बिजली पे चलेगा, जिसका विद्युतीकरण हो जाएगा, और 2030 तक पहला रेलवे होगा विश्व का इतना बड़ा जो नेट जीरो लॉस पे चलेगा। पूरी अपनी जो फ्यूल की रिक्वायरमेंट है, ट्रैक्शन की रिक्वायरमेंट है, वो रिन्यूएबल एनर्जी या क्लीन एनर्जी सोर्सेज से प्रोवाइड करेगा। साथ ही साथ वाईफाई की सुविधा हो या अच्छी तरीके से हम पूरे जो रेल व्यवस्थाएं हैं उसको मॉडर्नाइज करें, उसमें ट्रांसपेरेंसी लाएं, बुकिंग की व्यवस्था सुधरे, हमारे IRCTC की पैसेंजर टिकट बुकिंग व्यवस्था सुधरे, फ्रेट कस्टमर्स को इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल ऑनलाइन बुकिंग करने की सुविधा मिले। ऐसे अन्य अन्य पहलू के ऊपर विशेष बल दिया गया है। टेक्नोलॉजी और मॉडर्न मेथड्स इस्तेमाल करके सही माने में भारतीय रेल अब फ्यूचर रेडी होने की कगार पर है, उस दिशा में पूरी तरीके से जुटी हुई है। इसमें हमारे मीडिया के साथी बंधुओं का भी लगातार हमें सहयोग मिला है, जिसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। आप सब ने समय समय पे रेलवे के अलग अलग उपलब्धियों के बारे में, रेलवे के कामकाज में जो जो प्रगति हो रही है उसके बारे में देश को, देश की जनता को अवगत कराने में हमारी मदद की है। कभी हमारे में कोई कमी रही तो उसको भी उजागर करके आपने हमें मार्गदर्शन दिया, हमें और सतर्क रहने के लिए प्रोत्साहित किया। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, और मुझे विश्वास है आगे चल के भी आपका और हमारा ये सफर, ये साथ का सफर इसी तरीके से अच्छा गुजरेगा, और अच्छी तरीके से लगातार हमारा संपर्क बना रहेगा, और हम आगे आपके लिए भी और सुविधाओं के साथ देशवासियों के लिए भी इस रेलवे को तैयार कर पाएंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं अपने पत्रकार मित्रों के प्रश्न यहाँ पर रखूंगा और आप सबसे निवेदन करूंगा कि जो प्रश्न पूछे हैं, आपने जो भेजे हैं, आप वही प्रश्न पूछें, उसमें कुछ सप्लीमेंट्री या कुछ प्लस माइनस अभी ना ऐड करें, क्योंकि समय का अनुभव हमारे पास समय इतना नहीं है। और तो पहला प्रश्न सर, सर एक सोशल मीडिया पे काफी ट्रैक्शन आ रहा था, वो प्रश्न के रूप में ही है, तो मैंने यहाँ पे लिबर्टी ली है सबसे पहले उस प्रश्न को लाने के लिए। इनफैक्ट एक बिजनेस स्कूल से भी काफी बच्चों ने प्रश्न भेजे थे कि रेलवेज इज गेटिंग फ्यूचर रेडी, व्हाट डू वी मीन बाय इट सर? ऐसा है कि पहले जब रेलवेज कोई भी विषय पे काम करता था तो उसमें राजनीतिकरण बहुत ज्यादा थी और हैपहैज़र्ड डेवलपमेंट होता था। कोई विषय राजनीतिक कारणों के लिए कोई लाइन एक्सेप्ट हो रही है, कोई नई ट्रेन चल रही है और आस्ते आस्ते रेलवे की व्यवस्थाएं कमजोर होती गई। अब एक बहुत प्लान तरीके से नेशनल रेल प्लान बहुत गहराई से रेलवे के हर कामकाज के अंदर हर रिक्वायरमेंट और देश की आवश्यकताओं को असेस करके नेशनल रेल प्लान बनाया गया। उस नेशनल रेल प्लान में सिस्टमैटिकली असेस किया गया कहां से फ्रेट की रिक्वायरमेंट है, कहां से पैसेंजर्स की ज्यादा डिमांड है, किन सुविधाओं के लिए पैसेंजर्स ज्यादा परेशान है या जिसमें हमें फोकस करना चाहिए, फ्रेट की क्या क्या सुधार की आवश्यकता है जिससे और लोग आकर्षित हों रेलवे इस्तेमाल करने के लिए, कैसे आगे चल के डिमांड को हम पूरी तरीके से भर पाए और साथ ही साथ देश की आवश्यकताओं को भी पूरा कर सकें। इसलिए आज से ही हम भविष्य के डिमांड को भी असेस करें और भविष्य के लिए तैयारी आज से शुरू करें कि 2050 में हमारा क्या अनुमान है पैसेंजर ट्रैफिक का, क्या अनुमान है फ्रेट ट्रैफिक का, वो 2050 तक का जो अनुमान बना है उस सब को तैयार करें हम 2030 तक। उस दिशा में भारतीय रेल ने अपने आप को काम करना शुरू किया है और इसीलिए हम इसको भारतीय रेल को फ्यूचर रेडी कहने की बात करते हैं। ये पैसेंजर डिमांड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन हो, सेफ्टी हो, ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स हो, जो भी देश की आवश्यकताएं हैं और जो देश की अपेक्षाएं हैं, एस्पिरेशंस है, इन दोनों को पूरा करने का काम समय के पहले करें और अपने आप को तैयार रखते हुए भारतीय रेल डिमांड के पीछे रहने के बदले डिमांड के पहले वो चीजें सुविधाएं प्रोवाइड कर सके, इसको फ्यूचर रेडी कहते हैं। धन्यवाद। अपना सब लोग साइलेंस कर लें प्लीज। सारे पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कि अपना माइक ऑफ करके रखें प्लीज। सर क्या है कि बहुत सारे प्रश्न कई लोगों ने पूछे हैं, मैं पत्रकार बंधुओं से भी बोलता हूं कि उनकी तरफ से मैं पूछ रहा हूं। पहला प्रश्न है प्राइवेट ट्रेन चलाने की योजना और स्टेशन रिडेवलपमेंट से आम आदमी को कितना फायदा होगा? ये सिद्धार्थ पूछ रहे हैं, एडिटर न्यूज स्टेशन से, और कई पत्रकार बंधुओं ने पूछा नारायण जी, सिद्धार्थ को जिसने पूछा उन्हीं को पूछने दीजिए। अच्छा सर, सिद्धार्थ जी आप किया है। ओके सर, थैंक यू। पीयूष सर, आवाज आ रही? सर आ रही। सर नमस्कार। कैसे हैं सिद्धार्थ? बढ़िया सर। सर हमारे सब ठीक है? सब बढ़िया है सर। सर आपको ढेर सारी एक तो शुभकामनाएं कि अब चाहे वो डीएफसी हो या दूसरी, तो एक अच्छे मुकाम पर आप पहुंचा रहे हैं। और हमारे 4 सवाल हैं सर, एक दो नहीं है, 4 सवाल हैं। पहला सवाल है सर, अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए ये कहा जा रहा था 2023 तक पूरी हो जाएगी, उसकी स्थिति क्या है? और देश के अलग अलग हिस्सों के लिए जो आप लोग हाई स्पीड रेलवे की योजना बना रहे हैं, उस परियोजना के लिए इस बजट में तो आपको ढेर सारा पैसा मिला है, लेकिन इस परियोजना के लिए जो हाई स्पीड कॉरिडोर की बात करते हैं उसके लिए क्या इसमें पैसा दिया गया है? ये पहला सवाल है सर हमारा। पूरी बात रख लो अपने। जी सर।
पूरी बात रख लो, फिर मैं एक साथ ही जवाब दूंगा, बिकॉज ठीक मुझे सर। पार्लियामेंट पहुंचना है। सर, दूसरा सवाल है, जीरो बेस्ड रेलवे टाइम टेबल कब से लागू होगा और देश भर में सामान्य तरीके से पैसेंजर ट्रेनें कब से चलेंगी? और सर, तीसरा हमारा सवाल है, प्राइवेट ट्रेन चलाने की जो योजना है आपकी और स्टेशन रिडेवलपमेंट से आम आदमी को कितना फायदा होगा, और क्या स्टेशन रिडेवलपमेंट के लिए रेल यात्रियों पर शुल्क लगाया जाएगा, कोई चार्ज लगेगा? और एक चौथा सवाल है, लास्ट है सर, भारतीय रेलवे की तरफ से देश का युवा रोजगार के लिए हमेशा देखता है। 2018 में जो सीटें घोषित हुई थी, जिसके लिए एग्जाम भी हो चुका है, उसकी अभी तक भर्ती पूरी नहीं हुई है। कब तक भर्ती पूरी होगी और आने वाले दिनों में भारतीय रेलवे कितने और लोगों के लिए रोजगार पैदा करेगी? सिद्धार्थ जी, आपने तो पूरी भारतीय रेल की एक प्रकार से रिपोर्ट कार्ड मांग लिया मेरे से। बुलेट ट्रेन 2023 में बनाने की हमारी बहुत तीव्र इच्छा थी, पर आप जानते हैं महाराष्ट्र में बहुत विलंब हुआ, अभी तक हमें जमीन मिलने में बहुत तकलीफ हो रही है। मैंने पीछे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से भी बात की, अधिकारियों से तो लगातार बात चलती रहती है। अब क्योंकि वहां पे बहुत विलंब हो रहा था और उससे प्रोजेक्ट भी डिले हो रहा था, तो हमने फिर गुजरात साइड जो है वापी से आगे अहमदाबाद तक, उसके टेंडर्स देने का काम शुरू कर दिया है और अब उसमें जल्दी काम शुरू होगा। जैसे जैसे महाराष्ट्र में जमीन की और क्लैरिटी आएगी, तब इसका एंड डेट कंफर्म करने में हमें सुविधा होगी। अब मैं चाहूंगा कि आप सब जरा ये सवाल महाराष्ट्र में भी थोड़ा उठाएं कि कितना जल्दी हमें ये जमीन मिल सके, जिससे इस काम को होलिस्टिकली पूरे तरीके से हम आगे बढ़ा सके। नए हाई स्पीड रेल्स के लिए अभी डीपीआर बन रहे हैं और वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनने के बाद मेरा मानना है, अनुमान है कि इसको हमने और ज्यादा अधिक रूप में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में करना चाहिए। नए नए लोग, नई नई टेक्नोलॉजीज आए भारत में, कंपटीशन बढ़े और हो सके तो हम कोशिश करते हैं इनको उस रूट्स पे चलाएं जहां हाईवे के पास जमीन अवेलेबल है, जिससे इसका काम तेज गति से हो सके। जीरो बेस टाइम टेबल पे अभी तक काम चल रहा है, पर चूंकि होम मिनिस्ट्री ने अभी तक भारतीय रेल को पूरी परवानगी नहीं दी है, कॉशियसली हम देख रहे हैं कि रेल वो माध्यम ना बने कि वापस कोविड स्प्रेड हो जाए देश में। तो जैसे जैसे होम मिनिस्ट्री इस पे अलाउ करेगी और ज्यादा विस्तार करने का और पूरी रेलवे नॉर्मलाइज हो सकेगी, उस समय पे हम फिर जीरो बेस टाइम टेबल को इंट्रोड्यूस करेंगे। लेकिन उसके हिसाब से हम कोशिश कर रहे हैं कि मेंटेनेंस पार्ट्स बढ़े, फ्रेट के पार्ट्स बढ़े, फ्रेट भी टाइम टेबल फ्रेट ट्रेन हो, फ्रेट की स्पीड अब लगभग डबल हो गई है जैसा चेयरमैन ने अभी बताया। तो उसके जो जो लाभ है उसको हमने ऑलरेडी थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है। पैसेंजर सर्विस जैसे जैसे होम मिनिस्ट्री और अलग अलग स्टेट्स जो जो परमिशन देते हैं हम उसके हिसाब से बढ़ाते जा रहे हैं, डिमांड को भी असेस करते हुए। स्टेशन डेवलपमेंट का फायदा तो सिद्धार्थ जी सभी यात्रियों को ही होगा। जो यात्री स्टेशनों पे जाते हैं आज भी उनको एक बड़ा बदलाव दिखेगा पहले के निस्बत। साफ सुथरे हैं, टॉयलेट साफ सुथरे हैं, सब बोर्ड्स ठीक से चल रहे हैं, तो काफी कुछ मेहनत हुई है। पर इसको रियल एक प्रकार से इकोनॉमिक एक्टिविटी का सेंटर बना सके, ऐसी हमारी कल्पना है आगे चल के। और इन स्टेशंस को उस लेवल तक लेके जाएंगे कि अपने आप में ये ट्रेन पैसेंजर्स की सुविधा तो देगा ही, लेकिन एक इकोनॉमिक हब भी बन जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, रायपुर में पीछे गया था आज से 1-1.5 साल पहले, रात का समय था, स्टेशन गया देखने कैसा है, साफ सुथरा है, प्रॉपर मेंटेन्ड है। आप हैरान हो जाओगे, मैंने सैकड़ों बच्चे, शायद 300-400 बच्चे वहां पढ़ते हुए देखे, क्योंकि वहां का वाईफाई इतना अच्छा था स्टेशन का। तो बच्चे वहां स्टेशन पे, लाइटिंग हमने एकदम जबरदस्त एलईडी लाइटिंग वगैरह कर रखी है, साफ सुथरा है, बैठने की सुविधाएं अच्छी है, वाईफाई बड़ा स्पीड, हाई स्पीड का इंटरनेट कनेक्शन। तो बच्चे आके वहां पे पढ़ रहे थे और मुझे बड़ा आनंद आया। और उसी के बाद हमने फिर देश भर में व्यापक रूप से वाईफाई का फैलाव करने का निर्णय लिया और आज लगभग 6000 स्टेशन पे वाईफाई उपलब्ध है।
उसकी फाइनेंसिंग के अलग अलग मॉडल्स पे चर्चा चल रही है। जो जो निर्णय होंगे हम आपको समय समय पे बताते रहेंगे। और जो भर्ती का काम था वो प्रोसेस चल रहा है। कोविड के कारण पीछे 9-10 महीने उसमें थोड़ी रोक आ गई थी। दिसंबर से मुझे लगता है वो प्रोसेस हमने फिर से शुरू कर दिया है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, टेस्ट एग्जाम होगा, वैसे वैसे भर्ती और होती रहेगी। भर्ती का मैंने कैलेंडर अनाउंस कर दिया है और कितनी भर्ती होगी वो तो पहले ही मैं अनाउंस कर चुका हूं। धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद सिद्धार्थ जी। सर अगला प्रश्न भी हमारा सोशल मीडिया पे काफी आया है सर ये, और उस पे काफी इंटरेस्टिंग प्रश्न आया कि रेलवेज हैड बीन अनाउंसिंग लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स इन द पास्ट बट मेनी ऑफ देम रिमेन्ड इनकम्प्लीट. What is new now? How are you going to ensure that the projects get completed? Is there any new management mantra that you're looking at? बहुत अच्छा प्रश्न है। वास्तव में कई बार प्रश्न अपने आप में दिशा देता है कि आगे कैसे हमने काम करना चाहिए। एक जमाना था जब आप सब जानते हैं, मीडिया के बंधु तो खासतर से इस बात को समझेंगे कि राजनीतिक कारणों से जब प्रोजेक्ट्स अनाउंस होते थे तो ये नहीं देखा जाता था कि फंडिंग है नहीं है, कितना पैसा उपलब्ध है। कोई मंत्री बना कोई राज्य से, उसने धनाधन अपने राज्य के प्रोजेक्ट्स, नई लाइनें, नई ट्रेनें, नई स्टेशन अनाउंस करते गए। अब देखा ही नहीं जेब में पैसे है कि नहीं, कितना समय लगेगा, जमीन है कि नहीं है। ये पुराना जो सिस्टम था वो राजनीति से प्रेरित होने के कारण देश को और भारतीय रेलवे को उसका काफी नुकसान हुआ। अगर आपके पास 100 रुपए है और आपने 50 प्रोजेक्ट्स में 2-2 करोड़ रुपए खर्च दिया, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं होता है। और कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता है यानी कोई प्रोजेक्ट जनता की सेवा में ही नहीं आता। साथ ही साथ 50 के 50 प्रोजेक्ट में कॉस्ट ओवररन चलते जाए। उसके बदले अब भारतीय रेल बड़े फोकस्ड वे में जिन प्रोजेक्ट्स में 100% जमीन हमें उपलब्ध है, जो प्रोजेक्ट्स देश की अर्थव्यवस्था के लिए या पैसेंजर डिमांड के लिए बहुत क्रिटिकल है, उस पर फोकस कर रही है। लगभग 126 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल कैटेगरी में हमने देश भर में आइडेंटिफाई किए हैं, जहां पे हमारे पास जमीन भी लगभग पूरी अवेलेबल है। छोटे पैचेस हैं जिसके ऊपर हम पूरी तरीके से लगे हुए हैं कि मिल जाए। और इन प्रोजेक्ट्स को विशेष रूप से ध्यान देके कैसे पहले खत्म किया जाए जिससे ये देश की सेवा में आ सके, इस मंत्र के साथ हम काम कर रहे हैं। वैसे तो 513 प्रोजेक्ट है। अगर हमारा पैसा 513 प्रोजेक्ट में थोड़ा थोड़ा डिवाइड कर दिया तो कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए हमने उसमें क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स पे फोकस किया है। और हमारा मानना है कि जो हाई डेंसिटी रूट्स है और हाईली यूटिलाइज नेटवर्क है, उस पर फोकस करने से जो कैपेसिटी क्रिएट होगी उसकी डिमांड ज्यादा है, पैसेंजर्स को और फ्रेट को दोनों को सुविधा ज्यादा मिलेगी। नेशनल प्रोजेक्ट्स, जो प्रोजेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, जैसे श्रीनगर को कनेक्ट करने वाला प्रोजेक्ट जिसमें अंजी ब्रिज है, चेनाब ब्रिज है, और जिससे एक प्रकार से सही माने में कश्मीर से कन्याकुमारी पूरा सीमलेस कनेक्ट हो जाएगा। ऐसे प्रोजेक्ट्स पे हम ज्यादा बल दे रहे हैं। 2022 तक वो प्रोजेक्ट भी पूरा हो जाएगा, अगले वर्ष तक। ऐसे प्रायोरिटाइज करके अगले 4 साल में हमारा मानना है कि बड़े पैमाने पे ये पैसा जो हमारे पास आज उपलब्ध है, 2,15,000 करोड़, अपने आप पे रिकॉर्ड बजटरी कैपेक्स का प्लान है। ऐसे तेज गति से पैसा अगर 4 साल हम लगाते रहे तो जो ये हैवी डिमांड के रूट्स हैं, इस पे फोकस करके जरूरत के हिसाब से, ना कोई पॉलिटिकल कंसिडरेशन से, हम भारतीय रेल को वास्तव में एक अच्छा देश की अर्थव्यवस्था का अंग बना पाएंगे और पैसेंजर्स की सेवा कर पाएंगे। तो हमारी मैनेजमेंट मंत्र है
पहले प्रायोरिटी डिसाइड करना, फिर उसको रिसोर्सेज पर्याप्त मात्रा में देना और फिर तेज गति से उसको खत्म करना उसका। धन्यवाद। हाँ दिख रहा है। निसंदेह ही सर, ये बहुत ही उपलब्धि होगी भारतीय रेल की कि अगले 3-4 वर्षों में हम ये सारे प्रोजेक्ट पूरा कर लेंगे। और जिस तरह का प्रोफेशनलिज्म हमने दिखाया है, भारतीय रेल ने कुछ सालों में दिखाया है, और जैसा कि केवड़िया में भी हमने रिकॉर्ड समय में सर ये प्रोजेक्ट किया था, तो ये हम कर पा रहे हैं सर। हम लोग बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं सर। बंगाल से कुछ प्रश्न आ रहे हैं सर, और ये प्रोजेक्ट जो नेशनल लेवल पे आपने बताया बंगाल के बारे में, हमारे दिवेंदु जी हैं, वर्तमान अखबार से हैं सर, ये जानना चाहते हैं। और साथ ही ये प्रश्न TV9 बांग्ला सुदेशना जी, कृपया आपने माइक म्यूट कर लीजिए। दिवेंदु जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। हाँ कृपया आप लोग अपने माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। Am I audible, sir? हाँ दिवेंदु, आप पूछिए। जी, good afternoon, Minister sir. Good afternoon. Hello. जी, my question is for Bengal, sir. That when Miss Mamata Banerjee was the railway minister, she announced many projects in Bengal. My question is, sir, what is the current status of that projects, especially the budget allocation and like this? Thank you, sir. Dibendu Babu, I'm so happy you have asked this question because I'm happy to share with you that Yes, sir. the allocation, budget allocation for West Bengal is the highest ever in the history of Indian Railways. 6,636 crore rupees are going to be spent in the year 2021-22 in West Bengal. It is 2.5 times the amount that was allotted to West Bengal during 2009 to 14. The average amount during 2009 to 14 has been increased to 2.5 times in the budgetary allocation for next year. In fact, it is even 26% more than last year and the highest ever in its history. West Bengal, we have 53 projects going on. But just as I explained earlier projects were announced without any clarity about resources or land or timeline. We have one project which is as old as 1974-75, which is 45 years old. It must be more than the age of many of my media friends who are on this call today. 45-year-old project. It is still incomplete because land is not made available by the West Bengal government. First, the left front government, now the Trinamool Congress government, we have been pleading with them to make land available so we can spend more money faster and complete the projects in West Bengal. There are a lot of local issues in West Bengal which hold back implementation of projects. Therefore, in almost 34 projects, only token allotment could be done. I would once again, through you, urge Mamata Didi and the government of West Bengal to give us availability of land so that all those projects which were announced in so many years can be speeded up and implemented. I would like to assure the people of West Bengal through you that there will be no shortage of funds at all for any project in West Bengal if land is available and local issues are resolved. In fact, you are aware, the Honorable Finance Minister has kept 44,000 crore rupees extra in the budget so that if there is any additional requirement in any projects, where speed is there in the project and projects are executed fast, if additional funds are required, she can give it without waiting for next year's budget. So I would urge West Bengal government to help us implement these projects faster, and we will have no shortage of funds ever to implement any project in West Bengal. You must be aware, the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi has recently approved a massive increase in the amount of investment that we are doing in the Kolkata Metro Railway. There also we are investing significant amounts. Chairman Railway Board has come from West Bengal only. He will be able to share with you
how in West Bengal we have been struggling to get land and how we are keen to expand and speed up the projects there. Chairman, would you like to supplement this? In West Bengal, sir, a large number of projects were held up, and therefore we could not proceed very fast. But where land was made available, the projects went on very fast, sir, like the East-West Metro, which was inaugurated last year. Then we moved the East-West Metro corridor from Salt Lake Sector 5, we came to Phool Bagan, and now we are coming to Sialda, which will be linked with the Calcutta Suburban, which will be a very major step, sir. So, the Dakshineshwar project, which is almost complete, sir, of the metro. Then a number of electrification works and gauge conversion and doubling in Kadwa Azimganj section and the North Bengal area. So, wherever the land availability was given by the government, the railways were very quick and we executed those works, because that is also that area near Raniganj and Bardhaman and all these areas is also our coal belt. So a lot of works were done, a lot of passenger amenities works were done in the stations like Sialda, where we have a VIP lounge, we have good waiting rooms, lifts and escalators were added at Bardhaman. Then we also added a restaurant on wheels, sir, which you are aware, sir, at Asansol. So a lot of works have also been done where we got support from the government there, sir. Yes, thank you, sir. As a general manager, Eastern Railway, definitely, sir, you know that area. आपको पता है, sir, उस area के basics, and Honorable Minister has given a national perspective about the West Bengal. Sir, अगले question की तरफ हम बढ़ते हैं, sir. सर मुझे सर एक क्लैरिटी क्वेश्चन है, सर. एक क्लैरिटी चाहिए था, सर, कि ये 1974-75 वाला प्रोजेक्ट कौन सी है, सर? बस ये नाम चाहिए था मुझे, सर. ये डिटेल्स आपको जो वाजपेयी बाद में फोन करके बता देंगे, उसका एक छोटा नोट दे दो इनको. जी सर. राइट. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच, सर. नहीं मिल रहा है, वो डिटेल्स भी दे देना कि हम कब से लैंड, और मेरी चिट्ठियां भी है लैंड. जी सर. थैंक यू वेरी मच. मिल जाएगा ये. थैंक यू सर. सर, पॉपुलर क्वेश्चन ट्रेन सर्विसेज के रिजम्पशन को लेके है. ये क्वेश्चन मधुरेंद्र न्यूज नेशन से, कुंदन टीवी 9 भारतवर्ष से, और सुशील कुमार, जिनको मैं इनवाइट करना चाहूंगा हिंदुस्तान समाचार न्यूज एजेंसी से पूछने के लिए. श्री सुशील कुमार, कृपया क्वेश्चन पूछिए. नमस्कार सर. जी सुशील जी. सर, कोरोना को लेकर देश में हालात अब नियंत्रण में है. इवन सिनेमा हॉल और स्कूल भी खुलने लगे हैं. तो ऐसे में देश में नियमित ट्रेन सेवाएं कब से बहाल होंगी? सुशील जी, मैंने अभी अभी बताया कि कोविड की लड़ाई अभी तक पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुई है. वैक्सीनेशन तेज गति से बढ़ते जा रहा है और हमारी उम्मीद है कि जल्दी हम विजय पाएंगे इस कोविड की लड़ाई में. उसके बाद ही पूरी तरीके से ऑपरेशन शुरू हो पाएगी. इसमें हम होम मिनिस्ट्री के साथ लगातार संपर्क में रहते हैं. ये अच्छी बात है कि स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल खुल रहे हैं, पर आप ध्यान रखिए ये सब लोकल है. कुछ लोग बच्चे आए, स्कूल में पढ़े, घर चले गए कुछ घंटे के लिए. रेलवे एक ऐसी सर्विस है जिसमें भीड़ भाड़ कम होती है. बड़े रूप में देश भर में लंबे सफर में लोग जाते हैं, तो इससे हमको बड़ा कॉशियस थी. जैसे आप देखेंगे, हमने अनरिजर्व्ड अभी तक शुरू नहीं किया. अनरिजर्व में भीड़ होती है, लोग बहुत नजदीक बैठते हैं. सबर्बन भी संभल के आस्ते आस्ते शुरू कर रहे हैं. तो मुझे लगता है कि रिस्क ना हो कोरोना वायरस फैलाने का, उस हिसाब से हम आस्ते आस्ते बढ़ा रहे हैं. पर फिर भी मुझे आपको बताते हुए खुशी होती है कि लगभग 60% ट्रेनें शुरू हो गई हैं. आज के दिन 6,757 ट्रेनें चल रही हैं हर रोज, जो लगभग 60% है प्री कोविड लेवल की. इसमें भी अधिकांश मेल एक्सप्रेस ट्रेन, जो रिजर्व ट्रेन होती है, वो तो अधिकांश रूप में देश भर में जहां जहां डिमांड है उसको हमने शुरू करने का काम करते हैं. थैंक यू एवरीवन. आज ये आखिरी प्रश्न लेंगे. अब हमारे बिजी शेड्यूल है माननीय मंत्री जी का. एक प्रश्न राजेश जी आप प्लीज ले लीजिए. अंतिम प्रश्न के लेकर मैं बुलाना चाहूंगा दीपाली नंदा, CNBC आवाज TV 18. दीपाली, आप अपना प्रश्न पूछिए.
हेलो सर, नमस्ते। नमस्कार। सर, एफएम ने एसेट मोनेटाइजेशन को लेकर बड़ा अनाउंसमेंट किया है। अगर हम डीएफसी की बात करें तो कितना इन्वेस्टमेंट कैपेबल आपको लगता है इसमें एसेट मोनेटाइजेशन करना, और रेलवे का क्या कुछ प्लान है, और इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करने के लिए किस तरह की पॉलिसी बनाई जाएगी, खासतौर पर अगर हम टेलीकॉम कंपनियों की बात करें जिनके लिए ऑप्टिक फाइबर का एक अच्छा मौका इस एसेट मोनेटाइजेशन में मिल सकता है। थैंक यू। मैडम, भारतीय रेल में कई ऐसी चीजें हैं जिसमें एसेट मोनेटाइजेशन की संभावना है। उदाहरण के लिए ले लीजिए मुंबई और दिल्ली के रेलवे स्टेशन का। अब इतने बड़े पैमाने पे 6,000 5,000 करोड़ रुपए हम खर्च नहीं पाएंगे। इसके कारण सालों साल आधुनिक सुविधाएं जनता को मिल नहीं पाई। लेकिन जब हम क्रॉस सब्सिडी मॉडल देखें कि वहां पे पूरा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बन जाएगा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द। मुझे पता नहीं आपने मेरा वीडियो देखा कि नहीं, जो मैंने पब्लिक डोमेन में ट्वीट किया है, कैसे उस पूरे कायाकल्प हो जाएगा उस पूरे इलाके का और रेलवे स्टेशन का। और साथ ही साथ उसमें हम बड़े टावर बना के उसके पैसे से रेलवे स्टेशन को बढ़िया बना पाएंगे। अब ये कोई हमने रेलवे स्टेशन दे नहीं दिया, ये लाइसेंस होता है इस्तेमाल करने का हमारी जमीन को, जो क्रॉस सब्सिडी पे के रूप में कि वो जो बिल्डिंग बनती है उसकी कमाई से व्यक्ति हमारे स्टेशन को और पूरे ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टेशन के आसपास सुधार देते हैं। एसेट रेलवे का ही रहता है, ये हमारी चीज है, हमें इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इस क्रॉस सब्सिडी मॉडल से पैसेंजर्स को अच्छी सुविधा देने के लिए हमें मौका मिल जाता है। इसी प्रकार से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, ये एक अलग ही कंपनी है, ये कोई रेलवे का हिस्सा नहीं है। ये एक जापान और वर्ल्ड बैंक से फंडिंग करवा के अलग कंपनी के पीएसयू के माध्यम से इसको इम्प्लीमेंट करा जा रहा है। आगे चल के रेलवेज, वो डीएफसी की कंपनी एक बार अलग होने के कारण उस कंपनी को रेलवे के हिस्सा ही बनाने के बदले अगर उसको मोनेटाइज कर देते हैं तो रेलवे का जो पैसा लगा हुआ है उसमें वो छूट जाएगा। लोन का बोझ हमारे ऊपर नहीं आएगा, कोई और व्यक्ति उसको ले लेगा और जो हमारा पैसा हमें वापस मिलेगा उस पैसे से हम और नए प्रोजेक्ट्स, नए डीएफसीज हो, नए हाई स्पीड रेल्स हो, या हमारे एग्जिस्टिंग नेटवर्क को बढ़ाना हो, या दूर दराके के स्टेशन जहां पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में शायद लोगों को इंटरेस्ट ना हो लेकिन रेलवे को खरीदना पड़े, इन चीजों के लिए भारतीय रेल के पास पर्याप्त मात्रा में निवेश करने के लिए पैसा उपलब्ध हो जाए। तो ये पूरी चीज कैसे जनता की सेवा और हो सके उस एक दृष्टिकोण को रखते हुए प्लान की जा रही है। पर भारतीय रेल देश की संपत्ति है, जनता की संपत्ति है, एक नेशनल यूटिलिटी है और ये सदैव भारत की एक गौरव रहेगी, भारत की जनता की शान रहेगी। ये मैं आपके माध्यम से जरूर बताना चाहूंगा। धन्यवाद सर। और समापन का समय आ गया है इस सभा का। मैं बताना चाहूंगा करीब 35 हमारे नेशनल मीडिया के साथी दिल्ली से इस वेबएक्स मीट में जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही करीब 400 लोग हमारे साथ यूट्यूब चैनल से इस सब को देखा है, इस सभा को, इस प्रेस मीडिया वार्ता को। सभी मीडिया साथियों का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जो आज यहाँ जुड़े हैं अपना बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के। मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपना समय निकाला और उम्मीद रखते हैं कि ऐसे छोटे छोटे इंटरेक्शंस हम मीडिया के साथ करते रहेंगे जिससे कम समय में ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपके द्वारा मीडिया को दी जा सके, जनता को दी जा सके। सभी बोर्ड मेंबर्स का और चेयरमैन एंड सीईओ सर का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो इस कार्यक्रम में जुड़े। और इसके साथ हम ये सभा खत्म करते हैं। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सब जुड़े, आपको और आपके परिवारों को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें और संभल के भी रहें। कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है, हम सबको सावधानी बरतनी है। धन्यवाद।